So here we are talking about the market for banking technology industry that is estimated at $16 billion. And the banks have realized the digitization is imperative and are outsourcing some functions. So यहाँ पे highlight कर सकते हैं कि with increasing digitization जो skills हैं and technology sector industry है वो कितनी important होती जा रही है, and जो technology है वो हम use करें the loan life cycle management, लेंडिंग एज सर्विस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, केवाईसी सॉफ्टवेयर, एंड इसके अलावा भी जैसे बायोमेट्रिक सिस्टम्स यूज होते हैं, या फिर वी कैन से चैटबॉट्स जो कि बैंकिंग वेबसाइट्स पे यूज होते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आल्सो. सो द बैंकिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बिकम्स इम्पोर्टेंट. So here we are talking about Indian diaspora is playing a key role in global growth and adding value to their adopted countries and societies, though at the same time they continue to be rooted with their motherland. So Indian diaspora के बारे में हमने कुछ schemes की आज बात की थी. For example, Vaibhav scheme, Vajra scheme, जहाँ पे the faculty of Department of Science and Tech जो कि enable करते हैं NRIs को या फिर overseas scientific communities को कि वो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर पाए. एंड ऑल्सो देर इज वन मोर प्रोग्राम दैट इज नो योर इंडिया प्रोग्राम. सो इफ यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग एल्स. One more important role is the remittances. So India we saw that we became the first country in the world to hit this record of collecting $100 billion of remittances. So that is possible because of the Indian diaspora. We can move forward. यहाँ पे we are talking about greed, whether greed emerges from our psyche or from the environment or our genes remains an open question. तो greed की यहाँ पे बात हो रही है कि greed was natural, that man was born greedy. So greed के क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं इंडियन सोसाइटी पे, आप उसका कोई एग्जांपल दे सकते हो करंटली? Greed ka, when we talk about growth versus development, that is an example of greed. When we talk about there should be sustainable development, there should be equitable growth and development. When we talk about concentration of wealth within the hands of few, in India we see 10% of the population controls around 40 to 50% of the wealth. So that reflects greed. When we talk about crony capitalism, that is greed. When we talk about greenwashing, that is also greed, form of greed. And we can also say cyber crimes or dowry system, or in the times of pandemic जो कि होर्डिंग हो रही थी, जो स्टोर से एसेंशियल फूड या फिर मेडिसिन वगैरह थे उनको हायर प्राइसेस पे बेच रहे थे. सो वी कैन आल्सो से that is also greed. Yes. एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस जो बात करते हैं जिसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ही रेगुलेट करता है, तो दैट इज आल्सो ग्रीड. So there is just one more article about UNSC membership, if we can scroll down. You can take this up first. So यहाँ पे बात हो रही है Employees State Insurance Corporation to the unorganized sector and gig workers. तो डेटा दिया हुआ है 7.7 million estimated gig workers in the country in 2022 by नीति आयोग, 23.5 million Indian gig workforce by 2029 to 30. इतना ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी. एंड 24 states and 5 UTs have framed draft rules under the Code on Social Security 2020. So Code on Social Security की यहाँ पे बात हो रही है. सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, गिग इकोनॉमी, उनके रेगुलेशन की बात हो रही है कि इवन जो वर्कर्स विच आर अ पार्ट ऑफ द गिग इकोनॉमी एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स पहुंचाने की बात हो रही है, उनको कैसे और फॉर्मलाइज हम कर सकते हैं. एंड यहाँ पे एग्जांपल्स ई श्रम पोर्टल भी है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अगेन
the unorganized sector workers, हम आंगनवाड़ी और आशा workers की बात करते हैं कि they are not having their wages is very low. We talk about salary, not wages, and they are also not getting social security benefits. So they are also considered to be part of unorganized sector. And here अगर हम social security benefit schemes की बात करते हैं तो अटल पेंशन योजना, that is one of the, we can say, social security benefits for the unorganized sector also. और कुछ Yes, इसमें कवर करना है, आप कवर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो गिग सेक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है बिकॉज जो जेन जी है एंड मिलेनियल्स हैं तो आजकल दे आर प्रेफरिंग द गिग इंडस्ट्री। ऑल्सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का मॉडल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यूके हैज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कर स्टेटस फॉर द गिग वर्कर्स, एंड इन जर्मनी दे आर अलाउड टू जॉइन यूनियंस एंड engage in collective bargaining. And in the US also, the gig workers often face classification as independent contractors. So इंडिया में भी हम इनके लिए एक अलग से कैटेगराइजेशन बना सकते हैं। And participation is increasing because of the flexibility, which is the major benefit. यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, इट इज absurd that India doesn't have a permanent UNSC seat. तो यूएनएससी में 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स एंड देयर आर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स दैट आर इलेक्टेड फॉर 2-year term. India is also non-permanent member. So what is your stand regarding the statement that India does not have a permanent UNSC seat? Yes, तो so क्या when we talk about the UN reforms, हाँ, UN reforms का बात करते हैं तो this is one part of the reform which we talk about कि equitable regional representation होना चाहिए even in UNSC. So that is one thing. And again, India being, we can say, rising global power है. When we talk about the balanced approach also, and we are not having extreme positions when we come to the geopolitical issues, we talk about restoration of peace. So India being the one of the most, we can say, populous countries in the world. So that is a part of the demand of even UNSC reforms. So even global south का जो representation है उसकी भी हम बात करते हैं. yes, absolutely. Okay, Divya, you can take up in the newspaper. Okay. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जी और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में हम बात कर चुके हैं। उनके अगर कार्यकाल के बारे में देखते हैं तो 1970 जून से लेकर 1971 तक, और दूसरा कार्यकाल उनका 1970 से लेकर 1969 तक रहा था, जिसमें उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे थे। यहाँ ये देख सकते हैं कि जो राज्य सरकार है उसके पास अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1969 के तहत अधिनियम 3 के पास से उसको शक्ति प्रदान की जा सकती है कि वो अधिकारी का निलंबन कर सकते हैं और उन पे जो भी कानून लिए जाने चाहिए उनको लगा सकते हैं। ठंड के कारण सड़कों पर औसतन रोजाना 9 लाख लोगों की मौत हो जाती है। तो एनजीओ है स्टेट फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, उन्होंने बताया कि अगर औसतन देखा जाए तो 9 लोग डेली मर जाते हैं। अगर टोटल बात की जाए तो 180 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक, जिसका कारण है कि उन्हें जो सुरक्षाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती, उसकी वजह से उन्हें सड़कों पर सोना पड़ता है। अक्षय ऊर्जा, जब हम सूर्योदय स्कीम के विषय में बात करते हैं कि किस तरह से 1 करोड़ सोलर पैनल लगाए जाएंगे, तो उसके लिए कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को लगाया गया है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो कमी कहाँ रहती है कि वो जमीनी लेवल पर लागू नहीं हो पाता, तो उसका रीजन है कि जागरूकता की कमी है कि किस तरह से उनको किया जाए। स्कीम्स के बारे में नहीं पता जब सरकार जो लाती है, जिससे
60-40 या कुछ परसेंटेज होता है जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, बाकी का उनको करना होगा। दूसरा है कि उनकी कीमतें बहुत ज्यादा होती है, तो उसके रीजन हो सकते हैं कि जागरूकता का अभाव है, उसको दूर करके भी कुछ प्रॉब्लम्स को सुलझाया जा सकता है। अगर हम अभी की बात करें तो तापीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन यानी फोसिल फ्यूल पर हम ज्यादातर डिपेंडेंट है। जब हम जननायक कपूरी ठाकुर की बात करते हैं, इनके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने श्रमिक मजदूर वर्ग को, किसान को, युवाओं को शिक्षा के लिए और किस तरह से सभी के लिए कार्य किया था। उन्होंने जो आरक्षण की पद्धति अपनाई थी जिसमें ओबीसी के लिए वो आरक्षण लेके आए थे उनको द्वारा। निरर्थक कुछ भी नहीं। जब हम किसी भी चीज को करते हैं, शुरू करते हैं, तो हो सकता है हम बहुत ज्यादा उत्साह हो उस टाइम पे, थोड़े टाइम के बाद हो सकता है हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग आने लगे, तो चीजें बदलती रहती है। लेकिन जो भी काम करते हैं हम किस तरह से करते हैं उसमें निरर्थक कुछ नहीं होता। हम अनुभव करते हैं, उन चीजों में निपुण होते हैं, कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। अगर कमी है तो उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, उसको फिर से करते हैं, तो उससे हम परिपक्व होते हैं, हमें अनुभव आता है और फिर किस चीज को किस तरह से किया जाना चाहिए उसकी समझ आती है, जिसका हमें जीवन में अलग अलग स्तर पर लाभ देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि निरर्थक कुछ भी नहीं है। जो भी काम किया जा रहा है अगर वो सही तरह से किया जाए तो उससे हमें अनुभव होगा और परिपक्वता आएगी, परिपक्वता निपुणता आएगी। जब हम जोखिम की सड़कों की बात करते हैं, कि जब सड़क एक्सीडेंट की बात की जाती है तो देखा जाता है कि 2022 के आंकड़ों के अनुसार 4 लाख एक्सीडेंट हुए थे, जिनमें 1,60,000 के आसपास मृत्यु हुई थी। तो इनके कुछ कारण हो सकते हैं कि सड़कों पर जो मोड़ होते हैं वो बहुत ज्यादा तीखे मोड़ होते हैं, बहुत ज्यादा घुमावदार होता है, या फिर जहाँ घनी आबादी वाले क्षेत्र है वहां पर जो सड़कें बनी होती है उनकी वजह से ज्यादा दुर्घटनाएं देखने के लिए मिलती है। जब हिट एंड रन के मामले होते हैं तो उनमें जो चिकित्सा की उपलब्ध होना चाहिए, जो उन्हें मदद मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती, इस वजह से हो पाता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है जब हम देखते हैं कि आयुष्मान कार्ड है जिसमें चिकित्सा बीमा को इन्वॉल्व नहीं किया गया है, जो खर्च होता है वो ज्यादा हो जाता है, तो उसको भी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसके कारण भी आर्थिक मदद नहीं मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो मृत्यु के बाद उन्हें परिवार को आर्थिक मदद दी जाती है वो 2 लाख दी जाती है और घायल को 50,000 दी जाती है। जब उनके इलाज की बात करी जाए या परिवार के पालन पोषण की बात करी जाए तो वो बहुत कम है। तो उसके लिए जरूरी है कि सड़कों का जो डिजाइन है उसको बदला जाए, इस तरह से बनाया जाए कि सीधी सड़कें हो, ज्यादा घुमाव ना हो। अगर गांव के आसपास से गुजरती है हम देखते हैं वहां रोड काट दिए जाते हैं, उनको ना करा जाए। और जो चीजें रिफ्लेक्ट करते हैं उस तरह की चीजें ना हो, जो जानवर है वो आ जाते हैं वो सारी चीज ना आ पाए, तो इस तरह से सड़कों को बनाया जा सकता है ताकि हादसे कम हो। कल्प मेधा, व्यवहार की छोटी छोटी बातें ही व्यक्ति के चरित्र का दर्पण होती है, ना कि लंबी चौड़ी बातें। सुमेल साइमल। कौशिक। हाँ, इसमें बात करने की व्यवहार की छोटी छोटी बातें ही व्यक्ति के चरित्र का दर्पण होती है, ना कि लंबी चौड़ी बातें। छोटी छोटी बातें मतलब कि आप कैसे बिहेवियर एस्पेक्ट पे आप काम करते हो, लोगों के साथ, लोगों से बात करते हो, फिर आप क्या सोचते हो पिछड़े वर्ग के बारे में, फिर माइनॉरिटी के बारे में, वो दिखाता है। वो अगर चरित्र दर्पण उसी से दिखता है कि आपका जो विजन है वो सबके लिए है, सबसे अलग है। और फिर लंबी चौड़ी बातें मतलब कि आप बात करते हो कि इंडिया 2047 में क्या हो सकता है, या फिर बोल सकते हो कि वो इसी पे बात कर सकते हैं कि लंबी चौड़ी बातें से ज्यादा काम करो आप। छोटी छोटी बातें मतलब कि एकदम बेसिक ग्राउंड लेवल पर आप जब सोचते हो या थिंकिंग आप डेवलप करते हो, तो उसी की बात हो रहा है। आपको बोलना है, बोलो उसके छोटी आगे। छोटी बातें मैं इसमें बोलूंगी। हाँ, छोटी छोटी बातें मतलब डेली बिहेवियर में आपकी हम्म। आप कैसे बात करते हो या आपकी कैसे वैल्यूज रिफ्लेक्ट होती है, आपका क्या स्टैंड है किसी चीज को लेके, तो वो रेपिटेटिव है, इसलिए वो चीज आपकी पर्सनैलिटी में एनग्रेन्ड है, वो परमानेंट है, रादर देन बोला जा रहा है कि जो ये लंबी चौड़ी बातें रिफ्लेक्ट करेंगी। तो लंबी चौड़ी बातें कभी कुछ ऐसा इवेंट हो सकता है कि उसमें आपका एक्चुअली पता लगे कि आपका क्या पर्सनैलिटी या क्या कैसे स्टैंड लेते हो आप, या क्या बोलते हो, कैसे बिहेव करते हो। तो इसलिए छोटी छोटी बातें एक्चुअली दिखाती है कि आपका क्या चरित्र है। इंडिविजुअल लेवल पर देख सकते हैं, जैसे अगर
कूड़े को जहाँ डस्टबिन में डालना चाहिए वहां डाल दिया, कहीं पानी चल रहा है वो बंद कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा वेस्ट हो रही है वो बंद कर दिया। तो वो भी दिखाती है कि कोई कोई इंसान हाँ कितना रिस्पॉन्सिबल है और कोई नहीं है। तो सिर्फ बोलने से कि क्लीन हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी बच जाए वो नहीं होगी, जब तक हम उस चीज को नहीं करेंगे, छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे तभी वो आएगी। और वही चीज व्यक्ति के चरित्र को दिखाती है, उनके एक्शंस में दिखता है कि किस तरह से चीजें की जा रही हैं। सचिन, यस। आपको बोलना है व्यवहार कल की मेरा। छोटी एक्चुअली इसमें एग्जांपल दे सकता हूँ कि जो स्मॉल एफर्ट्स रहते हैं वो मेक्स बिग रिजल्ट्स। जो गोल रहता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो एक बड़ा गोल अचीव कर पाते हैं। उसी तरह से जो छोटी छोटी आदतें या फिर नियम रहते हैं उनसे ही व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। ऐसे देश के बड़ा गोल तो इंडिया का विकसित भारत 2047 है, लेकिन उसके लिए हमें जो छोटे छोटे गोल हैं तो उनको पूरे करते ही वहां तक जाया जा सकता लेकिन यहाँ पर चरित्र का हाँ, दर्पण होती का बात हो रहा है, यहाँ पर व्यक्ति की चरित्र का दर्पण होती है, मेहनत का बात नहीं हो रहा। सचिन, तो जहाँ तक दिव्या का बात है ना, वो ज़्यादा सुटेबल है कि सिर्फ बोलने से नहीं होता, आप छोटे लेवल पे आप काम करो, इन्वायरमेंट के लिए पानी बचाओ, बाकी सब चीज़। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं, जैसे मेल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो उसके लिए आशा वर्कर और आंगनवाड़ी का काम किया जाता है। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं पोलियो की, तो घर घर जाकर दिए जाते हैं। वो इतने छोटे उसमें डिवाइड किया जाता है, ऑल ओवर कंट्री में हर 6 मंथ में होते हैं। तो एक भी घर नहीं छोड़ा जाता और सब जगह किया जाता है। तो वहां देखा जा सकता है कि किस तरह से कितने छोटे टाइम में डिवाइड कर कर उनको पूरा किया जाता है। कि हाँ, अगर हम टीवी के उसमें भी देखते हैं कि 2025 तक भारत को टीवी मुक्त बनाना है, तो उसके लिए भी छोटे छोटे सेंटर लगाए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को चेकअप किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि कितने जो जांच की या चीजों की जरूरत है। दिव्या। पथ चिंतन से मार्ग सुरक्षा बढ़ेगी, केंद्र सरकार। तो पथ चिंतन नाम का एक कार्यक्रम है जो गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया है। पथ चिंतन चिंतन 2024 का नाम दिया गया है। इसमें यह है कि और जीएस पेपर 4 में ले लेना, क्योंकि स्थानीय एजेंसियों के से लेकर आम जनता तक हो सकेगी चिंतन में शामिल। मार्ग सुरक्षा के लिए नई तकनीक प्रयोग के लिए केंद्र सरकार की पहल। तो स्थानीय एजेंसी मतलब सबको कोऑपरेटिव स्पिरिट, ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल हो गया, सिटीजन फ्रेंडली ऑफ ए ग्रीवांसेस रेड्रेसल करने के लिए ओवरऑल जो चिंतन है, मतलब इस पर थिंकिंग है ओवर ऑन द दुर्घटना, जैसे रोड एक्सीडेंट के ऊपर में उसी की बात हो रहा है। जीएस पे परफॉर्मेंस एग्जाम्पल। हाँ, सिर्फ पब्लिक प्राइवेट नहीं है, लोकल लोग भी, जो नॉर्मल इंसान है वो भी ईमेल के थ्रू या किसी पोर्टल के थ्रू अपने आइडिया को रख सकते हैं कि ये यहाँ इस के लिए ये सुझाव हो सकते हैं। अगर किसी का सुझाव लिया जाता है तो उसको 1 लाख तक का इनाम भी दिया जाएगा, ताकि जो सड़क हादसे या फिर और भी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाया जा सके। तो किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा ताकि जो कार्बन जैसे के जो तत्व कम यूज होते हैं जिन टायर्स में, उनका यूज किया जा सके। जो कचरे के पहाड़ देखने के लिए मिलते हैं उनको कम किया जा सके। तो जो आम जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं उनको कम करने के लिए आम व्यक्ति से ही सुझाव लिए जाएंगे, वो भी इम्पोर्टेंस दी जाएगी उनको, ये कहा जा सकता है। ब्रह्मोस की बात करते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल है, इंडिया और रशिया द्वारा बनाया गया है। और जब हम इसके डिस्टेंस कैपेसिटी की बात करें तो करीब 450 किलोमीटर दूर तक इसकी रेंज है। अगर स्टार्टिंग में बात करें तो 2016 में एनटीसीआरएफ द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया था, जो बैन लगाया गया था, वो हटा था। उसके बाद भारत द्वारा इस मिसाइल को तैयार किया गया था, उस काम किया गया। एमटीसीआर एक मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है। वो बात करते हैं कि मिसाइल का टेक्नोलॉजी है, इट शुड बी लेस देन 300 किलोमीटर। उसके ऊपर तभी आप कर सकते हैं जब उसके पार्ट बनेंगे। तो इंडिया 2016 में उन एमटीसीआर रिजीम में पार्ट बन गए थे। तो उसके बाद फिर इंडिया ने अपने मिसाइल रेंज को बढ़ा दिया 450 से ऊपर, और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे। तो एमटीसीआर पूछता है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, एमटीसीआर एनएसजी
ये सब एक क्वेश्चन में पूछता है यूपीएससी में। नेक्स्ट। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित इसमें हो रहे राज्य। इसमें आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये है सारस, यानी क्रॉच पक्षी की तरह से राजहंस, राजहंस होता है विशुद्ध शाकाहारी है। ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि श्वान जो है विशुद्ध शाकाहारी है, बाकी ये लोग। दिव्या। और ये कि जो जब डिस्टेंस की बात की जाती है, हम देखते हैं जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो बाकी जो पक्षी है वो इतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ पाते। जब हम राजहंस की बात करते हैं तो वो इतनी ऊंचाई को भी आसानी से पार कर लेता है, जो जहाँ पर ऑक्सीजन का स्तर अन्य पक्षियों के लिए कम हो जाता है या फिर देखा जाता है वो अपनी जान गंवा देते हैं, तो काफी ऊंचाई पर उड़ सकता है ये ईगल। और सारस क्रेन इंडिया में एक्सटिंक्ट है, लास्ट अराउंड 2002 के आसपास देखा गया था इन द स्टेट ऑफ यूपी। तो माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज है। और केंद्रीय दक्षिण एशिया में के आसपास और यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। आयकर भरने वालों की संख्या 10 साल में दोगुनी हो गई। हाँ तो ले यहाँ लिया देख इसको सकते कि पहले 3.93, कहाँ गया 3.8, 3.8 3.8 करोड़ थे, अभी 7.8 करोड़ हो गए। याद कर लो डायरेक्टली। 10 साल में पहले 7 लाख करोड़ जो वित्त वर्ष 2013-14 में जमा हुआ, अभी 19.72, 19.7, 104% बढ़ गया है। 104, अप्रोक्सीमेटली 20 लाख करोड़ के आसपास। हाँ। नाम भी अचीता कूनो ले लिए राष्ट्रीय इसको। उद्यान ले लिए। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया। मैप देख लेना एक बार नामीबिया का। टू किल ऑफ टाइगर ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑस्कर के लिए मालदीव्स में ले नामिनेट लिए। होगी। ये मालदीव्स ने चीन को सहमति दी। रिसर्च व्हीकल पोर्ट कॉल वह बंदरगाह है जहां यात्रा के क्रम में जहाज रुकते हैं। तो पोर्ट कॉल एक बार पीटीए में हम लोग डिस्कस किए। तो फिर देखिए तुर्कियों की संसद में स्वीडन की नाटो सदस्यता के लिए मतदान करने की सहमति जताई। तो तुर्की और स्वीडन में फर्क ये था कि जो टर्की थे वो हमेशा से स्वीडन का, हाँ, स्वीडन वांटेड टू ज्वाइन नाटो बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ रशिया इन द ईस्टर्न रीजन। टर्की नहीं चाहते थे क्योंकि स्वीडन हमेशा से टर्की को बोलते हैं कि वो एक तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हैं, और टर्की चाहते नहीं है कि स्वीडन इंक्लूड हो क्योंकि उससे एक उनका जो इन्फ्लुएंस है विथ रिस्पेक्ट टू द ईस्टर्न रीजन वो कम हो जाएगा। तो ओवरऑल इसके आपस में रहता है दोनों के बीच में, लेकिन सहमति दे दिया गया, सहमति जताई। टू किलर टाइगर ले लिए, नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर। So in terms of geography, हमने बात की अष्टमुडी लेक के बारे में, that is in Kerala. It is a brackish water lake and it is also a Ramsar site. It is the second largest lake in Kerala. First, the largest lake है Vembanad Lake. उसके बाद we also talked about thorium in India. Thorium globally अगर बात करते हैं तो India has the largest deposits of thorium. And thorium जो होता है दो कुछ mineral से derive करते हैं, monzite and thorionite. उसके अलावा केरला जो है इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम इन इंडिया, फॉलोड बाय तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल. देन वी टॉक्ड अबाउट पल्सर एंड क्वार्सर्स. पल्सर की जो एनर्जी बीम ऑफ एनर्जी है वो दैट इज परपेंडिकुलर टू अर्थ, एंड जो क्वार्सर में इट इज नॉट परपेंडिकुलर. पल्सर वी कैन से रेमिनेंट है एक बड़े स्टार का दैट अंडरवेंट सुपरनोवा एक्सप्लोजन, एंड जो क्वार्सर है
जो सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है उसमें जो मैटर फॉल करता है उससे पावर्ड होता है क्वासर. एंड इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी, इंडिया हैज 73.3 gigawatts of total installed solar capacity, and from that 11 gigawatts is grid connected. Gujarat has the highest number of installed solar capacity, followed by Maharashtra, Karnataka, Rajasthan. Thank you. पॉलिटी में हमने डिस्कस किया था मुंगेरी लाल कमीशन के बारे में, जिन्होंने फर्स्ट टाइम बात की थी सब कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशन की. उसके बाद सैरोगेसी एक्ट की 20 to 24 वीक्स तक ही जो किया जा सकता है. उसके बाद जो इन्फेंट राइट है उनके बारे में बात की गई थी. इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि बीएसएफ एक्ट है वो किस तरह से 15 किलोमीटर एरिया के अंदर आता है. उसके बाद जो पुलिस के राइट्स है वो होंगे. स्टेट की बात की थी, पंजाब राजस्थान की. उसके अलावा हमने बात की थी ईसीई की कि किस तरह से इनको अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के रिलेटेड बात की जाएगी साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और इंजीनियरिंग में. होमी जे भाभा जी के बारे में बात की थी. और हमने डिस्कस किया था कि रेरा किस तरह से जब हम एनसीडीआरसी की बात करते हैं तो उन्होंने जब कंज्यूमर राइट्स की बात होती है उनको किस तरह से सोल्व किया जाता है. प्रेरणा. Adding on to Kapuri Thakurji, layered reservation key term tha, we talked regarding that. Then promotion of regional languages, contributions in Mungeri Lal Commission. We also talked about Make in India, उसमें toys के बारे में, that how toys exports have increased by 239% and imports have declined by 52% 2014-15 से लेकर 2023 तक. So it made India net exporter. Regarding semiconductors, we talked about SFAL, which is Karnataka government's Semiconductor Fabless Accelerator Lab, and how the focus should be more on DPI than DLI. DLI, Design Linked Incentives. We also talked regarding Gini Index, which is a standard measure of inequality. It ranges from 0 to 1. And 1 is for a perfect inequality, 0 is for perfect equality. Then data की हमें बात करें तो it has fallen from 0.472 in 2014-15 to 0.402. 15% reduction हुआ है over these years. Then later talked about going beyond action reaction mode. This was regarding the Indian Ocean region में and strengthening the anti-piracy measures, and also two different situations we related this term continental and maritime challenges regarding the center state dispute. And also regarding minority institutions and parliamentary law, we discussed regarding Article 30, which is for like regulation of minority institution. And AMU के बारे में we talked regarding, and examples were जैसे खालसा colleges हो गए, Saint Stephen हो गया, regarding this, and how the administration should be secular. Administration का जो system होता है even in the minority institutions. That's all from my side. Okay, thank you everyone. We will take up next newspaper tomorrow. Do tune to Ansarkar.